Good morning, students. Today we are going to discuss the topic of psychological assessment. That is, what are the sources, what are the biases in psychological testing? As you know, we have taken class related to psychological testing. In that class, we have understand about what is the psychological test and what is the nature of psychological test, what are the types of psychology. In general, psychological test is a device, measuring device or tool which quantify the psychological phenomena or which quantify the uh, psychological concept. So, psychological tests are very essential or standardized tools which quantify the human behavior. So, in this lecture, we are going to talk about the what are the error, what are the possible sources or source of bias in psychological terms. What are possible source of biases in psychological terms? Whenever we are doing some kind of psychological testing, during psychological testing, we face many issues related to testing. Whether test is assessing all in true sense or is there any bias. So we will discuss about the possible sources of bias. Okay. Before going further, we need to understand what are the test bias. What are the test bias? Test bias is one that systematically overestimate or underestimate the value of variable it is intended to. What does this mean? It means when we are assessing a phenomena, when we are uh, assessing a variable, the value of that variable sometimes go overestimated and sometimes go in a underestimated. Actual value is not came in front of us. That is why it is known as bias. If this bias occurs as a function of nominal cultural variables such as ethnicity or gender, cultural test bias is said to be present. We can understand the biases in this term. Biases means sometimes our measurement value will come overestimated or underestimated. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को किसके स्कोर को या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के स्कोर में जब मेजरमेंट करते हैं वो कई बार तो अंडर एस्टिमेट किया जाता है स्कोर, कई बार ओवर एस्टिमेट किया जाता है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे सामने नहीं आती उसकी,
कि वो एक्चुअल स्कोर में क्या था, तो इसीलिए उसको हम बायस कहते हैं। वो या तो ओवर साइड में है या अंडर साइड में है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट बायस? Test bias refers to the differential validity of test scores for groups. Example: age, education, culture, race, and sex. Bias is a systematic error in the measurement process that differentially influences score for identified groups. Bias can be internal or external. Internal means बायस जो है वो टेस्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, टेस्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, टेस्ट के कंटेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। एक्सटर्नल बायस क्या होगा? टेस्ट के जो डिफरेंशियल प्रिडिक्शन हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है कि टेस्ट की जो वैलिडिटी है, टेस्ट का जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया है, वो उनसे रिलेटेड भी हम टेस्ट में बायस देख सकते हैं। अगर एक साइकोलॉजिस्ट को टेस्ट डेवलप करना है तो you need to understand the what are the biases, what are the biases in psychological testing। उसको थोड़ा पता होना चाहिए कि टेस्ट के बायस को कम करने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो टेस्ट की या वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात, तो इन सारी बातों का उसको ध्यान रखना होता है जब वो टेस्ट बनाता है। ओके, अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट आर द जनरल कैटेगरी ऑफ टेस्ट बायस। कितने तरह के टेस्ट बायस होते हैं? बेसिकली इसमें हम तीन तरह के टेस्ट बायस की बात करते हैं यहाँ पे, जो जनरल कैटेगरी के हैं। पहला जो जनरल कैटेगरी टेस्ट बायस है विच इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बायस व्हाट इज दैट? It refers to whether a test accurately measures what it was designed to measure। जो भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बायस होता है वो उस चीज को एक्यूरेटली मेजर कर रहा है जिस चीज के लिए उसको बनाया जाता है। तो ठीक है, अगर वो उसमें कहीं अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन कर रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बायस आ जाता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया इंटेलिजेंस टेस्ट का। Students who are learning English will likely encounter words they have not learned, and consequently test results may reflect their relatively weak English language skills rather than their academic or intellectual ability। देखिए इस एग्जांपल में आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जो इंटेलिजेंस टेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं लर्निंग इंग्लिश का, they will likely encounter words they have not learned। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? टेस्ट रिजल्ट में रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिवली वीक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स rather than their academic और intellectual। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो कंस्ट्रक्ट है, जिस चीज को वो टेस्ट मेजर कर रहा है, जिस चीज के लिए टेस्ट बनाया गया उसी को मेजर नहीं कर रहा, कोई और चीज मेजर कर रहा है, तो वहां बायसेस आ जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट बायस, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बायस। सेकंड है कंटेंट वैलिडिटी बायस। ये भी एक तरह का बायस है जब हम टेस्ट बायस की बात करते हैं। टेस्ट बायस में कंटेंट वैलिडिटी बायस भी होता है।
which occurs when the content of a test is comparatively more difficult for one group of students than for others. It can occur when member of a student subgroup, such as various minority groups, have not been given the same opportunity to learn the material being tested. When scoring is unfair to a group, or when questions are worded in ways that are unfamiliar to certain students because of linguistic or cultural differences. कंटेंट वैलिडिटी बायस में क्या होता है, आपका जो टेस्ट है उसके जो आइटम्स हैं अंदर, क्या उस आइटम्स से रिलेटेड है कि नहीं। आपने एक टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस का, पर्टिकुलरली आपने बनाया कि हमें इंटेलिजेंस को मेजर करना है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में आइटम्स इंटेलिजेंस के ना होके पर्सनैलिटी के हैं, तो आपका जो कंटेंट वैलिडिटी बायस आ गई। ठीक है, आपके जो टेस्ट के आइटम्स का जो सिलेक्शन है वो मैच नहीं कर रहा आपके कंटेंट से। आइटम्स उसमें पर्सनैलिटी के डाल रखे हैं, टेस्ट आप कंटेंट आपका क्या है, इंटेलिजेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंटेंट वैलिडिटी बायस आ जाएगा। ओके, थर्ड जो है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बायस। ये क्या है, it refers to a test accuracy in predicting how well a certain student group will perform in the future. Predictive ability test में क्या होगा, you are predicting something on the basis of the present score. You are having the present score of the individual. On that basis, you are predicting, yes, he will take this course in future. He will pursue doctorate in psychology because you have master degree course in front of you, or master degree score of that individual in front of you. It means प्रिडिक्टिव बायस भी कई बार क्या है, वो आ जाते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रिलेटेड बायस में। वो प्रिडिक्शन जो है वैलिडिटी बायस में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपने कुछ और स्कोर प्रिडिक्ट किया था और निकल कर कुछ हो रहा है। तो दिस कैन बी द प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बायस। अब आगे देखेंगे, psychologists have expressed numerous concerns over the use of psychological and educational tests. These concerns are potentially legitimate and substantive, but are often asserted as true in the absence of scientific evidence. Reynolds Law et al. In 1999 have divided the most frequent of the problems cited into 7 categories, which described briefly here in next slide. First, test bias, or first possible source of bias in psychological testing is related to inappropriate content. जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमें उसमें कंटेंट से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि क्या ये कंटेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है।
अगर टेस्ट कंटेंट अप्रोप्रिएट है तो हमारे टेस्ट में बाइसेस नहीं आएंगे, और टेस्ट कंटेंट में कुछ आपको इनअप्रोप्रिएट नजर आती है या कुछ चीजें दिख जाती है, या ये आइटम पर्सनैलिटी का नहीं है, ये आइटम तो किसी और चीज का है, तब आपको क्या है, तब आपको क्या है उसमें कंटेंट से रिलेटेड कंसर्न आपको दिखाई दे देगी। कहने का मतलब यहाँ ये है कि वो कंटेंट उसका रिलेटेड नहीं है उस टेस्ट से। सेकंड क्या है, टेस्ट बायस क्या हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। जो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट किया है, ड्यूरिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जो हमारा सैंपल साइज है वो, या सैंपल जो हमने लिया था वो स्टैंडर्डाइज सैंपल नहीं था और इनअप्रोप्रिएट, उसकी वजह से भी टेस्ट बायसेस आपको नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनर एंड लैंग्वेज बायसेस। एग्जामिनर एंड लैंग्वेज बायसेस, ये क्या है, कई बार जो एग्जामिनर होता है, जो टेस्ट करने वाला होता है, उसको लैंग्वेज से रिलेटेड भी बायस होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन पॉपुलेशन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की है। एग्जामिनर की लैंग्वेज जर्मन है और टेस्ट बना रखा है इंग्लिश, तो वहां भी जो टेस्ट बायस हैं वो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन इक्विटेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कई बार देखने को मिलती है कि स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप जो है उसकी वजह से भी टेस्ट बायसेस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स। टेस्ट बायस आपके इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, टेस्ट largely based on majority culture are measuring different characteristics altogether for members of minority groups, rendering them invalid for these groups. इससे रिलेटेड भी टेस्ट आपको बायसेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्रिडिक्टिबिलिटी, जो हमने पहले भी बताया था, हमारे प्रिडिक्टिबिलिटी से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बायसेस आ जाएंगे। क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो these are the some of the psychological biases which we are facing in psychological testing. अगर हमने साइकोलॉजिकल बायसेस को कंट्रोल करना है, साइकोलॉजिकल बायसेस जो टेस्टिंग में आते हैं उनको कंट्रोल करना है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन से पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन बायसेस को मिनिमाइज किया जाए, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो प्रॉपर फॉर्म में डेवलप हो। ठीक है। तो these were the biases which we are observing in psychological tests or in psychological testing. So this is all about the sources and biases of psychological